Good morning, students. In the previous video we have started the topic continuity and we have done few questions. Now today we will do some more questions of this topic. This is third question of exercise 5.1. We have to check this function for the continuity. We have to check whether this function is continuous or not. Here it is given x is not equal to -5. It means we have to check its continuity in its domain which is r minus -5. क्योंकि -5 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जनरल कोई एक रियल नंबर लेंगे. लेट x इक्वल टू k इज एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू -5. मीन्स वी हैव टेकन a number in its domain. Now the limit x tends to k fx will be equal to limit x tends to k fx means x square minus 25 divided by x plus 5. You can factorize the numerator, so it becomes x minus 5 x plus 5 divided by x plus 5. This gets cancelled and this is a polynomial, and the limit of polynomial is found by putting the value in the given polynomial. So it becomes k minus 5, and the value of the function at a is also k square minus 25 divided by k plus 5. Factorize the numerator, k minus 5 k plus 5 divided by k plus 5. This gets cancelled and you get k minus 5. Therefore, we get limit x tends to k fx is equal to value of the function at k, that is 5, k minus 5. And this is the condition of continuity, that if the value of a function at any point is equal to limit of the function at that point, then the function is said to be continuous. Therefore, fx is continuous at any real number x or k which is not equal to -5. Another question is this is question number 6. fx equal 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and if x is greater than 2. It means for all values of x which is less than or equal to 2, the function is defined by 2x plus 3, and for all positive values which are greater than 2, the function is defined by 2x minus 3. इसका मतलब इसका जो डोमेन था रियल लाइन, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 2 से लेस और एक 2 से ग्रेटर, और दोनों में फंक्शंस को अलग अलग तरह से डिफाइंड किया है. तो यहाँ पर हमें से की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनेंगी. एक 2 से लेस पर हम चेक करेंगे, एक 2 से ग्रेटर पर चेक करेंगे और एक 2 पे चेक करेंगे. और जब फंक्शन इस तरह से बाइफरकेट हो जाता है, डोमेन फंक्शन का इस तरह से डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के चांसेस हैं वो इस पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन पे ही होते हैं. मतलब अगर इसको डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये इसका जो बाइफरकेशन वाला पॉइंट है 2, उस पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स पर 2 से लेस और 2 से ग्रेटर ये एक पॉलिनोमियल की तरह डिफाइंड है और इसीलिए वो कंटिन्यूअस हो. फिर भी हम इसको चेक करके दिखाएंगे. सो वी हैव
two cases. Case 1, let x is equal to k is any real number and k is less than 2. मतलब हमने 2 से छोटा कोई रियल नंबर लिया. अब उस पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) x टेंड्स टू k f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k. अब 2 से छोटा फंक्शन कैसे डिफाइंड है? 2x प्लस 3 से डिफाइंड है, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन इट बिकम्स 2k प्लस 3. Value of the function at k equal 2k plus 3. Now we see that the limit of the function at k is equal to value of the function at k limit x tends to k f(x) equal fk Therefore, f(x) is continuous for x equal to k which is less than 2. Now case second, if x is greater than 2, let x is equal to k is any real number and which is greater than 2. Now limit x tends to k. In this case, since this k is greater than 2 and for points greater than 2, function is defined from here 2x minus 3. So f(x) will be 2x minus 3. So it becomes 2k minus 3 and the value of the function at a point which is greater than 2, it will also be 2k minus 3. So limit x tends to k f(x) is equal to value of the function at k for k greater than 2. Therefore f(x) is continuous. क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है. इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स फॉर ऑल x greater than 2 or for all k greater than 2 you can write. Now the third case, that is at x equal to 2. Case 3, if x equal to 2, then क्योंकि 2 के लेफ्ट में फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है और राइट में अलग तरह से डिफाइंड है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर अलग निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे. सो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो फंक्शन लेफ्ट में 2x प्लस 3 की तरह डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) को रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 3 से. देन इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0. जब हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो x को रिप्लेस किससे करेंगे? एज 2 माइनस एच. तो x को रिप्लेस करेंगे एज 2 माइनस एच से और h टेंड्स टू 0. देन h 0, तो इट बिकम्स 7 एंड राइट हैंड लिमिट एट 2 इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और राइट में फंक्शन डिफाइंड है 2x माइनस 3 से. और जब हम राइट लिमिट निकालेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से, क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं इसलिए 2 प्लस h से रिप्लेस करा. h 0 है तो ये भी 7 आ गई. और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3. 2x प्लस 3 से डिफाइंड है 2 पर फंक्शन, तो x को 2 से रिप्लेस कर दिया है, इट इज़ ऑल्सो 7. तो हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि लेफ्ट लिमिट equal right limit is equal to value of the function. So it is continuous at 2 is equal to right limit
of the function limit left limit is equal to right limit is equal to value of the function at 2. Therefore, fx is continuous at x is equal to 2. तो सब पॉइंट पर, डोमेन के हर पॉइंट पे हमने देख लिया 2 पर भी कंटिन्यूस है, 2 से लेस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है, 2 से ग्रेटर पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस है. इसके लिए हम कह सकते हैं दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस at all real numbers. एक ये मॉड का क्वेश्चन लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इज -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जब x 0 से छोटा है तो मॉड x को हम किससे रिप्लेस करते हैं? -x से. तो इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं एज x अपॉन -x इफ x इज लेस देन 0 एंड इट बिकम्स -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब दोनों ही हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? -1. तो यहाँ पर 0 के लेफ्ट पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. तो x टेंड्स टू 0 बिकम्स, क्योंकि यहाँ फंक्शन -1 है तो इसकी लिमिट कांस्टेंट है फंक्शन, तो इसकी लिमिट वही हो जाएगी, दैट इज -1. और राइट लिमिट में राइट में भी 0 के -1 है फंक्शन, तो ये भी -1 हो गई. और फंक्शन की वैल्यू एट 0 ये भी यहाँ से डिफाइंड है -1, सो इट इज़ ऑल्सो -1. तो इन 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट is equal to value of the function at 0. Therefore, it is continuous at 0. और क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में ये कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उन पर भी वो कंटिन्यूस होगा. इट मीन्स it is continuous everywhere. Therefore, fx is continuous at x is equal to 0 and since it is constant function for x less than 0 and x greater than 0, therefore it is continuous for all x less than 0 and x greater than 0. Hence fx is continuous at all x belonging to R. Thank you.